तुम्हारा नाम मैं कहाँ लिखवाऊँ? अपने दिल पर या अपने हाथ पर? अपनी प्रॉपर्टी पर लिखवा दे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। लॉरेंस बिश्नोई ਮੈਸੇਜ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਸਟ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ इंडिया दे या मांगू तेरे सजदे में, कारों में फिरना, फ्लाइटों में फिरना। सोचिए एक ऐसा मंदिर जहां इतना खजाना छिपा है कि पूरी दुनिया के कई देश मिलकर भी उतना अमीर नहीं होंगे। और सबसे डरावनी बात, उस खजाने का एक दरवाजा आज तक कोई खोल नहीं पाया। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां उन्हें अनंत शयन मुद्रा में पूजा जाता है। यह मंदिर सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। 2011 में जब मंदिर के कुछ गुप्त तहखानों को खोला गया तो अंदर से निकला सोने के आभूषण, हीरे, मोती, मुकुट और अनगिनत खजाना। अनुमान लगाया गया कि इस खजाने की कीमत लाखों करोड़ रुपए हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर में एक तहखाना है, वॉल्ट बी, जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। कहा जाता है कि इस दरवाजे पर कोई ताला या कुंडी नहीं है बल्कि रहस्यमयी नागों की आकृति बनी हुई है। मान्यता है कि अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यह दरवाजा केवल विशेष मंत्रों और दिव्य शक्तियों से ही खुल सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह स्वयं भगवान की सुरक्षा में है और इसे खोलने का समय अभी नहीं आया है। अब सोचिए, अगर वो दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा? क्या अंदर इससे भी बड़ा खजाना है या कोई ऐसा रहस्य जिसे दुनिया जानने के लिए अभी तैयार नहीं है? तो आप क्या सोचते हैं? क्या वॉल्ट बी कभी खुलेगा या यह रहस्य हमेशा के लिए छुपा रहेगा? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए सोचिए एक ऐसा मंदिर जहां इतना खजाना छिपा है कि ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਸਟ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ। लॉरेंस बिश्नोई तुम्हारा नाम मैं कहाँ लिखवाऊँ? अपने दिल पर या अपने हाथ पर? अपनी प्रॉपर्टी पर लिखवा दे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। या मांगू तेरे सजदे में, कारों में फिरना, फ्लाइटों में फिरना। వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రియల్ ఎస్టేట్ కింగ్ 1. కేవలం 44 lakhsకి G+1 ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అయితే సేల్కి అయితే వచ్చిందండి. ఈస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉన్న G+1 ఇండిపెండెంట్ హౌస్ వచ్చి యనమల కుదురు నుంచి పెదబుల్బాకి వెళ్ళే అవనిగడ్డ కరకట్ట వైపు ఉన్న ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అనమాట. టోటల్గా 70 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో ఉన్న ఈ G+1 ఇండిపెండెంట్ హౌస్ వచ్చి కేవలం 44 lakhs అయితే చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి హౌస్ లోపల వ్యూ కూడా చూద్దాం పదండి. న్యూ ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అండి, కొత్తగా ఇప్పుడే రెడీ అయితే అవుతుందన్నమాట. వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసి మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ ఇచ్చేస్తారు. ఇది వచ్చి కిచెన్ వ్యూ అండి. ఒకసారి కిచెన్ వ్యూ చూడండి. విజయవాడ బెంజ్ సర్కిల్కి కేవలం 5 kilometers అయితే ఉంది. యనమల కుదురు నుంచి పెదబుల్బాకి వెళ్ళే అవనిగడ్డ కరకట్ట వైపు ఏరియా అనమాట ఇది. కిచెన్ అయితే చాలా స్పేషియస్గా వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం హాల్ వ్యూలోకి అయితే వచ్చామన్నమాట. 70 స్క్వేర్ యార్డ్స్ కావడం వల్ల సింగిల్ బెడ్రూమ్ అయితే చాలా స్పేషియస్గా అయితే ఉంది. కింద ఫ్లోరింగ్ మొత్తం వచ్చి మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్ అయితే చేయించారు. పాలిషింగ్ చేసి మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. పెయింటింగ్ వర్క్స్ కానీ, డోర్స్ కానీ, సీలింగ్ వర్క్స్ కానీ, సీలింగ్ లైట్స్ కానీ. 44 lakhs వచ్చి దీని కాస్ట్ చెప్తున్నారు. ఉత్తరం వైపు సందులో వచ్చి మనకి కామన్ బాత్రూమ్ అయితే ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి బెడ్రూమ్ కూడా చూద్దాం పదండి. బెడ్రూమ్లో వచ్చి మనకి అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ కూడా ఉంది. బెడ్రూమ్ అయితే చాలా అంటే చాలా స్పేషియస్గా ఉందండి. G+1 ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కావడం వల్ల మనకి 10,000 రెంట్స్ అయితే వస్తాయన్నమాట G+1 బిల్డింగ్కి. వివరాల కోసం మన నెంబర్కి అయితే కాంటాక్ట్ చేయండి. మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రియల్ ఎస్టేట్ కింగ్ 1. కేవలం 44 lakhsకి G+1 ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అయితే సేల్కి అయితే వచ్చిందండి. ఈస్ట్ ఫేసింగ్లో ఉన్న G+1 ఇండిపెండెంట్ హౌస్ వచ్చి యనమల కుదురు నుంచి పెదబుల్బాకి వెళ్ళే అవనిగడ్డ కరకట్ట వైపు ఉన్న ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అనమాట. టోటల్గా 70 స్క్వేర్ యార్డ్స్లో ఉన్న ఈ G+1 ఇండిపెండెంట్ హౌస్ వచ్చి కేవలం 44 lakhs అయితే. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ इंडिया दे तुम्हारा नाम मैं कहाँ लिखवाऊँ? अपने दिल पर या अपने हाथ पर? अपनी प्रॉपर्टी पर लिखवा दे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। या मांगू तेरे सजदे में, कारों में फिरना, फ्लाइटों में फिरना। लॉरेंस बिश्नोई ਮੈਸੇਜ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਸਟ ਹੋਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ। क्या कोई ठोस पत्थर किसी जीती जागती इंसान को हमेशा के लिए अपने भीतर समेट सकता है? महाराष्ट्र के अकोला में एक ऐसा चमत्कारिक शिवलिंग है
जिसकी दरार में आज भी एक रेशमी साड़ी का पल्लू फंसा हुआ है। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि उस महारानी की आखिरी निशानी है जो सदियों पहले महादेव के इस विग्रह में जिंदा समा गई थी। आखिर उस काली आधी रात को ऐसा क्या हुआ था जिसने ब्रह्मांड के स्वामी को यह असंभव चमत्कार करने पर मजबूर कर दिया? इस मार्मिक गाथा की शुरुआत होती है अकोला के राजा अकोल सिंह और उनकी परम भक्त महारानी से। रानी का हृदय राजसी सुखों में नहीं, बल्कि महादेव के चरणों में बसता था। पर पहरेदारों और राजसी तामझाम के बीच उन्हें एकांत में पूजा का समय नहीं मिल पाता था। इसीलिए रानी ने एक गुप्त संकल्प लिया। हर रात ठीक 12 बजे, जब सारा संसार सो रहा होता, वे नंगे पैर चुपचाप महल से निकलकर शिव मंदिर जाने लगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महल के गलियारों में विषैला संदेह पनपने लगा। दरबारियों ने राजा के कान भर दिए। महाराज, आखिर महारानी हर आधी रात को छुपकर किससे मिलने जाती हैं? शक का वह बीज राजा के मन में एक भयानक राक्षस बनकर जाग उठा। एक रात हाथों में नंगी तलवार लिए राजा अपनी ही पत्नी के पीछे मौत बनकर निकल पड़े। रानी जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में पहुंची और शिव के ध्यान में लीन हुई, तभी पीछे से राजा की पदचाप सुनाई दी। अपनी ही पत्नी पर तलवार ताने खड़े पति को देख रानी का कलेजा फट गया। एक पतिव्रता स्त्री, क्या कोई ठोस पत्थर किसी जीती जागती इंसान को हमेशा के लिए अपने भीतर समेट सकता है? महाराष्ट्र के अकोला में एक ऐसा चमत्कारिक शिवलिंग है जिसकी दरार में आज भी एक रेशमी साड़ी का पल्लू फंसा हुआ है। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि उस महारानी की आखिरी निशानी है जो सदियों पहले महादेव के इस विग्रह में जिंदा समा गई थी। आखिर उस काली आधी रात को ऐसा क्या हुआ था जिसने ब्रह्मांड के स्वामी को यह असंभव चमत्कार करने पर मजबूर कर दिया? इस मार्मिक गाथा की शुरुआत होती है अकोला के राजा अकोल सिंह और उनकी परम भक्त महारानी से। रानी का हृदय राजसी सुखों में नहीं, बल्कि महादेव के चरणों में बसता था। पर पहरेदारों और राजसी तामझाम के बीच उन्हें एकांत में पूजा का समय नहीं मिल पाता था। इसीलिए रानी ने एक गुप्त संकल्प लिया। हर रात ठीक 12 बजे, जब सारा संसार सो रहा होता, वे नंगे पैर चुपचाप महल से निकलकर शिव मंदिर जाने लगी। लेकिन नियति को कुछ क्या हाल है साਰਿਆਂ ਦਾ? ठीक हो, खैरियत नाल हो? यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਸਟ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ लॉरेंस बिश्नोई ने अब लॉरेंस बिश्नोई आज तुम्हारा नाम मैं कहाँ लिखवाऊँ? अपने दिल पर या अपने हाथ पर? अपनी प्रॉपर्टी पर लिखवा दे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। या मांगू तेरे सजदे में, कारों में फिरना, फ्लाइटों में फिरना। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी सख्ती पेश आइए इससे, वरना ये बिगड़ जाएगा। और मैडम, मैं जब भी सख्ती करता हूँ ना, ये 911 डायल करके पुलिस बुला लेता है। लेकिन 911 तो अमेरिकन पुलिस का नंबर है नहीं? वहीं की बुलाता है, यहाँ वाली तो लेट हो जाती है ना, ट्रैफिक बहुत है। तो आप जो इसे बार बार ऐसे मतलब कवर अप कर रहे हैं ना, इज इट वेरी बैड। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके प्यार की वजह से बिगड़ा है। आप इसको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। इसको तो मैं कुछ नहीं करता, इसकी माँ को करता हूँ मैं बहुत प्यार। हेलो, चाय फट गई है। अबे मनहूस, दूध फटता है। कभी कभी सर भी फट जाता है, ध्यान से थोड़ा सा। देखिए जी, आपको पता है, इसे इतना नहीं पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है। इतना तो मुझे भी पता है, रोज सब्जी लेकर इधर से निकलती है। हाँ, इसीलिए चाय बेच रहे हो। मैडम, आप बच्चों से इतने सवाल करती हैं, आपके पति की क्या हालत होती होगी? हेलो, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। मैंने यही कंफर्म। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी सख्ती पेश आइए इससे, वरना ये बिगड़ जाएगा। और मैडम, मैं जब भी सख्ती करता हूँ ना, ये 911 डायल करके पुलिस बुला लेता है। लेकिन 911 तो अमेरिकन पुलिस का नंबर है नहीं? वहीं की बुलाता है, यहाँ वाली तो लेट हो जाती है ना, ट्रैफिक बहुत है। तो आप जो इसे बार बार ऐसे मतलब कवर अप कर रहे हैं ना, इज इट वेरी बैड। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके प्यार की वजह से बिगड़ा है। आप इसको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। इसको तो मैं कुछ नहीं करता, इसकी माँ को करता हूँ मैं बहुत प्यार। हेलो, चाय फट गई है। अबे मनहूस, दूध फटता है। क्या हाल है साਰਿਆਂ ਦਾ? ठीक हो, खैरियत नाल हो? यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਸਟ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ लॉरेंस बिश्नोई ने अब लॉरेंस बिश्नोई आज तुम्हारा नाम मैं कहाँ लिखवाऊँ? अपने दिल पर या अपने हाथ पर? अपनी प्रॉपर्टी पर लिखवा दे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। या मांगू तेरे सजदे में, कारों में फिरना, फ्लाइटों में फिरना।
देखो मैं श्रद्धांजलि देने आई हूँ। मैं अजीत पवार दादाजी को श्रद्धांजलि देने आई हूँ मैं। अरे बीच में इधर इधर मत बोल, तेरे को ज्यादा प्रॉब्लम है, सामने आ। वेरी गुड। अजीत दादाजी के लिए मैं श्रद्धांजलि देने आई हूँ। बहुत ज्यादा दुख हुआ। देखो मैं श्रद्धांजलि देने आई हूँ। मैं अजीत पवार दादाजी को श्रद्धांजलि देने आई हूँ मैं। अरे लेकिन अगर सच में प्रेम तो शादी में क्या दिक्कत है? अगर एक बंधन आपके प्यार को समाज में इज्जत दिलवाता है तो उसमें बन जाना बेहतर ना? शादी में तुम्हारी ना कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। लेकिन अगर सच में प्रेम तो शादी में क्या दिक्कत है? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਸਟ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ लॉरेंस बिश्नोई तुम्हारा नाम मैं कहाँ लिखवाऊँ? अपने दिल पर या अपने हाथ पर? अपनी प्रॉपर्टी पर लिखवा दे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। या मांगू तेरे सजदे में, कारों में फिरना, फ्लाइटों में फिरना। ग्रेटर इजराइल के लिए रास्ता साफ किया जाए और उसमें भी ईरान रास्ते में हायल है। ये जो मजहबी वादे ये सहूनी ताकतों से हुए हैं। माइक हकवी का एक जो इंटरव्यू था जो किया टकर कार्लसन ने, जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, तो उसमें उसने कहा कि मिडल ईस्ट पे आपको क्या ऐसी आग लगी हुई है कि आपने इजराइल को बिठाना है वहां पे जाके। तो उसने कहा कि ये वादा तो खुदा ने किया है, अच्छा, इलामी कुतुब के अंदर। तो अगर तो पूरा मिडल ईस्ट भी इजराइल के हाथ लग जाए तो इसमें कोई बुरी बात इसीलिए नहीं है कि हम खुदा के वादे पे अमल कर रहे हैं। दिस इज अमेरिकन एम्बेसडर टू इजराइल सेइंग ऑन कैमरा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद में पीट हेक्सेथ की तरह के लोग भी हैं जो कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं। अब उसने अपने बाइसेप पे काफिर लिखवाया हुआ है। हाँ जी। वो इसीलिए कि वो खुलेआम इस्लामोफोबिक कन्वर्सेशंस भी करता है। उसने ये भी कहा कि रिलीजियस डिलूजन्स आपकी नहीं चलेंगी, और उसकी अपनी डिलूजन क्या है? वो ये है कि क्रिश्चियंस का ये बुनियादी फरीज़ा है कि वो यहूदियों को पूरी दुनिया के ऊपर काबिज करवा के दें, क्योंकि उससे पहले मिसाया नहीं आएगा। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें। जियो पॉलिटिक्स भी है उसमें, तेल भी है उसमें, मिडल ईस्ट की हुक्मरानी भी है और उसमें ये वाली डिलूजन भी है। इन दी एंड गेम जो रिलीजियस वॉर है, इसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा। ग्रेटर इजराइल के लिए रास्ता साफ किया जाए और उसमें भी ईरान रास्ते में हायल है। जो मजहबी वादे ये सहूनी ताकतों से हुए हैं। माइक हकवी का एक जो इंटरव्यू था जो किया टकर कार्लसन ने, जो अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, तो उसमें उसने कहा कि मिडल ईस्ट पे आपको क्या ऐसी आग लगी हुई है कि आपने इजराइल को बिठाना है वहां पे जाके। तो उसने कहा कि ये वादा तो खुदा ने किया है, अच्छा, इलामी कुतुब के अंदर। तो अगर तो पूरा मिडल ईस्ट भी ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਸਟ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ तुम्हारा नाम मैं कहाँ लिखवाऊँ? अपने दिल पर या अपने हाथ पर? अपनी प्रॉपर्टी पर लिखवा दे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। या मांगू तेरे सजदे में, कारों में फिरना, फ्लाइटों में फिरना। क्या आपने कभी सुना है नाग खजाने की रक्षा करते हैं? असल में पुराने समय में जब बैंक नहीं होते थे, लोग अपना सोना चांदी जमीन में गाड़ दिया करते थे और उस धन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जगहों पर नाग तंत्र का उपयोग किया जाता था। कहा जाता है कि वहाँ नागों के जोड़े को स्थापित किया जाता था ताकि वे उस खजाने की रक्षा करें। इसी वजह से जब भी कोई उस जगह खुदाई करता था, अक्सर वहाँ से सांप निकल आते थे। और या मांगू तेरे सजदे में, कारों में फिरना, फ्लाइटों में फिरना। तुम्हारा नाम मैं कहाँ लिखवाऊँ? अपने दिल पर या अपने हाथ पर? अपनी प्रॉपर्टी पर लिखवा दे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। लॉरेंस बिश्नोई ਮੈਸੇਜ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਸਟ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਸਟ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਗਨੋਰ लॉरेंस बिश्नोई ने अब లారెన్స్ బిష్ణోయ్ लॉरेंस बिश्नोई आज या मांगू तेरे सजदे में कारों में फिरना फ्लाइटों में फिरना या मांगू तेरे सजदे में कारों में फिरना फ्लाइटों में फिरना